देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। मुस्लिम शरीफ। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया वमा फीहा से बेहतर है। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। जिले नलगुंडा के देवरकुंडा हल्का असेंबली में 18 ग्राम पंचायतों को पहले प्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत शाल कंपनी के ट्रैक्टर्स की मंजूरी अमल में लाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिन में इन ट्रैक्टर्स में काम निकल आया। आज इन सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एमपीडीओ ऑफिस देवरकुंडा पहुंचकर एहतजाज दर्ज किया है और ट्रैक्टर्स को वापस लेने का मुतालबा किया। कहा कि एक गैर मारूफ कंपनी के ट्रैक्टर्स देने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। नायक भारतीय जनता पार्टी గిరిజన మోర్చా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి దేవరకొండ అసెంబ్లీ। ఇప్పుడు మనము దేవరకొండ ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో ఉన్నాము। ఇక్కడ ఉన్న ట్రాక్టర్లు అన్నీ కూడా ఈ గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చిన ట్రాక్టర్లు, ఏవైతే గ్రామ పంచాయతీకి అవసరం లేకున్నా కూడా బలవంతంగా సర్పంచ్లకు బలవంతంగా ఈ ట్రాక్టర్లను అంటగట్టడం జరిగింది। నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు అవసరానికి కొద్ది ట్రాక్టర్లు తీసుకునే వాళ్ళు, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు అయితే గ్రామ పంచాయతీకి డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయో ఆ డైరెక్ట్ నిధులు సర్పంచ్లకు వాళ్లకు అధికారం ఇవ్వకుండా, వాళ్ళకు అవసరం ఉన్న ఖర్చులు పెట్టకుండా అనవసరంగా ఈ ట్రాక్టర్లు, నాణ్యత లేని ట్రాక్టర్లు, అసెంబ్లీ ఫిట్టింగ్ తోటి ఉన్న ట్రాక్టర్లను బలవంతంగా ఇప్పించి అధికారులు, ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కుమ్మక్కై కమిషన్ల కోసం ఈ ట్రాక్టర్లు ఇచ్చిర్రు। ఈ ట్రాక్టర్లు వెంటనే ఈ ట్రాక్టర్లను ఇచ్చిన కంపెనీ వాళ్లకు రిటర్న్ చేసి నాణ్యమైన ట్రాక్టర్లు ఇప్పించాలని మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఇక్కడ కమిషన్లు తీసుకున్న ఈ నాయకులు, అధికారులను అన్ని రికవరీ చేయాలని మేము భారతీయ జనతా పార్టీ देवरकोंडा असेंबली నుండి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। पिछले 3 माह के बेतहाशा बरखी बिल के जरिए ये हुकूमत आवाम को लूट रही है। इन ख्यालात का इजहार सीपीआई रियासती सेक्रेटरी कोनमेनी सांबा सेवा राव ने कोत्तागुड़म में बरखी बिलों में इजाफे के खिलाफ एससीएफ ऑफिस के रूबरू एहतजाज दर्ज किया है। इस धरने में पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद रही। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ కార్యాలయం ముందు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాం। ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇష్టం వచ్చిన విధంగా విద్యుత్ సంస్థలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా ప్రజల మీద 200 బిల్లు వచ్చేటికి 20,000 కూడా బిల్లు వచ్చింది। తప్పుల తడకగా విద్యుత్ ఛార్జీలు ఇవాళ ప్రజల మీద భారం మోపి అదనపు డబ్బులు వసూలు చేశారు। వాటిని తిరిగి ఇవ్వాలని, తప్పులు సరిచేయాలని, ప్రతి తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నటువంటి పేదవాడికి 200 యూనిట్లు ఉచితంగా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఈ 4 నెలల పాటు కరెంటు ఛార్జీలు మాఫీ చేయాలని, అధికంగా వసూలు చేసినటువంటి ఛార్జీలను తిరిగి ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్తోని ఇవాళ మొత్తం విద్యుత్ సంస్థల కార్యాలయాల ముందు అధికారులకు ఓ నిరసన ప్రజాస్వామ్యయుతంగా లాక్డౌన్ నిబంధనలతో చేయాలని చెప్పి మేము వెళ్తూ ఉంటే ఇవాళ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 23 మండలాల్లో ఇవాళ పోలీస్ అధికార యంత్రాంగం ప్రభుత్వం యొక్క సలహాతోని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించారు। అంటే ప్రజల మీద భారాలు మోపుతూ ఆ భారాలని నివారించాలని ప్రజల తరపున అడగటానికి, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పోయేటానికి కూడా ఇవాళ అవకాశం లేకుండా ఈ నిర్బంధాలను ప్రయోగించడం ఎంత మాత్రం సరికాదు। ఈ అక్రమ అరెస్టులను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। ఈ అరెస్టులతో, నిర్బంధాలతో ప్రజల యొక్క ప్రజాస్వామిక హక్కులను మీరు హరించలేరని తెలియజేస్తూ తక్షణం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి ముక్కుపిండి వసూలు చేసిన అదనపు విద్యుత్ ఛార్జీలను తిరిగి ఇవ్వాలి। 200 యూనిట్ల వరకు అందరికీ కూడా ఛార్జీలు మాఫీ చేయాలని చెప్పి సిపిఐ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। కరోనా లాక్డౌన్ కాలంలో 3 నెలల కరెంటు బిల్లులను వెంటనే ఇవ్వాలి। गोकुल चाट भंडार के मालिक को कोरोना होने की तस्दीक के बाद इस मशहूर चाट भंडार के बीएस मुलाजिमीन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस खबर के आम होते ही इसके ग्राहकों में भी बेचैनी पाई जा रही है।
बाबसूसराय की इतला पर बालापुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले ऐट इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए 9 बच्चों को छुड़ा लिया गया है। ये बच्चे एक चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम कर रहे थे। मकान मालिक के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और बच्चों को हॉस्टल रवाना किया गया है। मैं उमंदा काउंसलर जिमकला राधिका श्रवण बात कर रहे हैं। हम कोत्तापेट में एक चूड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, घर में बना रहे थे। इसमें 9 जने चिल्ड्रन से 3 जने बड़ा आदमी हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन आया अपना बालापुर PSA सर्कल साहब भास्कर साहब और चिल्ड होम्स के वो ऑफिसर भी आए थे। उसको जाके दौरा करके देखे तो बच्चे चिल्ड्रन होम्स को बेचने गए। अब पकड़ लिए तो 9 जने बच्चे छोटे छोटे और 14 साल के अंदर वाले 3 जने भी 18 के ऊपर वाले हैं। उन लोगों को चिल्ड होम्स बेचने गए। क्या कर रहे थे बच्चे चूड़ियों का अंदर चूड़ियों बना रहे, छोटे बच्चों को लेके उन लोग काम करा रहे थे। ऐसा इंटीमेशन आए तो भास्कर साहब अपना बालापुर से सर्कल साहब और मीडिया वाला भी और चिल्ड होम्स डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे। उन लोगों को देखो तो चूड़िया अंदर बना रहे थे, उन लोगों को पकड़ लिया। रच्चागंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत ने सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मल्काजगिरी बालू चौहान को मुअत्तल करते हुए इनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक सरुनगर पुलिस स्टेशन में चौहान के खिलाफ उनकी दूसरी अहलिया ने धमकाने का इल्ज़ाम लगाकर एक मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी की वजह से इनके खिलाफ तहकीकात की तकमील तक वो मुअत्तल रहेंगे। चौहान पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी दूसरी शादी के मुतालिक महकमे के इल्म में भी नहीं लाया है। अशोक कुमार नामी एक होमगार्ड जो दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में बरसरे खिदमत है, कोरोना होने की वजह से फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक अशोक कुमार को पहले इसको एक कांगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था, बाद इसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अशोक कुमार को मुर्दा करार दे दिया गया है। मुरलीधर बाग में बसने वाले 120 खानदान जिनके अपने मकान नहीं हैं, हुकूमत की जानिब से इन्हें डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी भी अमल में लाई गई है, लेकिन गुत्तेदार श्रीधर रेड्डी की जानिब से मकानात बनाने में ताख़ीर पर इन मकीनों ने आज रास्ता रोको एहतजाज किया है। इनका कहना है कि मकानात की अदम तामीर से मायूस होकर अब तक 10 अफराद ने खुदकुशी कर ली है। भाई बहनों को कमेटी हिंदू मुस्लिम जितने भी अपने कमेटी में आज अपने कने इतना बड़ा कदम हो रहा है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा अपने को, ना GSMC से रेस्पॉन्स मिल रहा, ना कोई MRO से रेस्पॉन्स मिल रहा, ना IDO में मिल रहा, ना कलेक्टर में मिल रहा। लिहाजा KCR साहब तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो हर गरीबों को एक एक घर दूंगा बोल के बोले साहब, और बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब, लेकिन उनके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ KCR साहब को, थोड़ा गरीबों पे या डबल बेडरूम वालों को खाने को मर रहे, घर का रेंट नहीं है, कम से कम सुसाइड कर लिया, 10 आदमी सुसाइड कर लिया और 15 से 16 आदमी मजबूरी में मर गए, रेंट नहीं लेकर रहा घरों को, और उनको कमा के खाने को कुछ भी नहीं है उन लोगों को। ऐसा हमारी परिचय की ये हालत है कि रेंट में से 10 अभी तो लोग 15 से 20 मकान हम लोग खाली कर दिए, वो मकान में जा रहे हैं सामान फेंकता रहे, ये मकान में जा रहे हैं सामान फेंकता रहे। हमारा परिचित इस टाइम पे तो बहुत बेकार, बहुत खतरनाक है। हमारे को भी कुछ भी हो सकता, अभी हमारे को खाने को भी नहीं है, हमारे को रेंट भी निकलना मुश्किल हो रहा। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले आप कहाँ पे रहते थे? पहले यहीं रहते थे, यहीं मुरलीधर बाग में रहते थे। 120 मकान MRO साहब आके, IDO साहब मैडम आके, घर टू डोर आके हमारे को देख के विकेट करे, और 2 साल में बना के देता हूँ बोले, 2 साल जाके चंद दिन बढ़ गए, अभी तो लोग 50% भी काम नहीं हुआ। మాది మురళీధర్ బాగ్ బస్తీ. ఇంతకు ముందుకు మా పూరి గుడిసెలు ఉండేవి. ఇక్కడ మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానని హామీలా కలెక్టర్ గారు, MRO గారు, RDO గారు హామీ ఇచ్చారు. వాళ్ళ మాట పైన మేము అందరం ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయినాం. మాకు 1 ఇయర్ టైం ఇచ్చారు, 1 ఇయర్లో మీకు డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి ఇస్తామని. 1 ఇయర్ కాదు 2 ఇయర్స్ అయిపోయింది. 2 ఇయర్స్ వరకు ఇక్కడ సగంకి సగం పని కూడా కాలేదు. ఇంకా కిరాయిలు కట్టలేక, పని లేక, ఏం లేక ఒక 15 మంది దాకా సూసైడ్ చేసుకున్నారు. రోజు చేసుకొని తింటేనే మాకు ఉండేది ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే బండిలు పెట్టేటోళ్ళు ఉన్నారు, ఫ్రూట్స్ బిజినెస్ చేస్తారు ఇక్కడ చాలామంది, ఆ బిజినెస్ కూడా లేక ఈ లాక్డౌన్ టైంలో
ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మాకు ఏ రెంట్లు లేవు, ఏం లేవు. మా అంతటా మేము ఉండే వాళ్ళ హామీ మీద మేము ఇల్లు ఖాళీ చేసి మేము బయట ఉన్నాం, బయట బతుకుతున్నాము. గౌరవలైన ముఖ్యమంత్రి గారికి మా యొక్క మురళీధర్ బాగు నివాసిని కాబట్టి ఒక 100 కుటుంబాలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి గత 70 సంవత్సరాల నుంచిగా. కాబట్టి మా పూరి గుడిసెలు ఉండి వాళ్ళకి ఏదో రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నందుకు ఆయన మా మీద దయదలిచి ఇవాళ మాకు అందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్లు అనే వర్క్ మాకు స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి అందరికీ కూడా ఎవరికి కూడా मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद अली कलीशा कादरी मोहम्मद इस्माइल कादरी ने आज सहाफ़ियों को बताया कि सर्वे नंबर 49 पेट बशराबाद कुतुबुल्लापुर मंडल में दरगाह की 5 गुंटा आराजी पर एक लैंड ग्रैबर ने कब्जा कर लिया है। 1 साल कबल इसके खिलाफ रियासती वक्फ बोर्ड में दरख्वास्त दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि लैंड ग्रैबर के साथ वक्फ अहदेदार मिलीभगत का नतीजा है। दरगाह शरीफ सैयद अली कलीशा कादरी रहमतुल्लाह बारदार इशारत के तहत कब्रस्तान की जो जगह है 3 एकड़ 2 गुंठे थी, सर्वे नंबर 39 सर्वे नंबर, उसके अंदर 3 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन थी, उसके बाद में जो है 5 गुंठे हो गई। वो 5 गुंठे ज़मीन की गजट है औक़ाफ़ के तहत, गवर्नमेंट की गजट है, गजट को भी नोवेर करके जो है लुगाए कर रहे हैं। हम जाके पूरा औक़ाफ़ से करने के बाद में पोजीशन देते बोलते 2 वक्त जो है आए, आने के बाद में मंडल में भी गए, मंडल के लोग भी आए वहाँ पे करे। फिर उसके बाद आज पोजीशन देते पीर के दिन बोले वो पोजीशन नहीं दिए, चोटके से बोले। इसकी वजह क्या है बोले तो इससे पहले ये अपने सीईओ साहब के सीनियर साहब जो है उनके बिल्डर के अदमिया हैं, तो सीईओ साहब से मिलने के बाद में हम केस शुरू करने के बाद में ये मसला हल हुआ कि सीईओ साहब के लोग जो है आके उसको कोर्ट में केस डाले और इनको टरकाटे 1 साल कर दिए। 1 साल के बाद में जो है बोल रहे कि केस है, इसमें जिस दिन पोजीशन देना उस दिन बोल रहे केस है बोल के। तो ये औक़ाफ़ के लोग औक़ाफ़ का स्टाफ ऐसा काम कर रहा है। ये हमारे क़य्यूम साहब इंस्पेक्टर है RI और सीईओ साहब है, सीईओ साहब के सीनियर हैं जो बिल्डर के साथ काम करने वाले, और क़य्यूम साहब मिलके जो है ये कामों को जो है उनको आइडिया दे के सब दे के ज़मीन को खपा दे रहे। इसकी वजह से और ख़ास तौर के ऊपर जो है हमारे चेयरमैन साहब बोले कि तहफ़्फ़ुज़ करो कब्रिस्तान की ज़मीनों का। उन्होंने खुद भिजाए, उस दिन मंडल ऑफिस में गए, दिन मुकर्रर कर दिए सर्वे करके पोजीशन देने के बाद में भी क़य्यूम और सीईओ मिल के जो है पेंडिंग करके इसको जो है केस डाल के अब ज़मीन को ख़त्म करने के चक्कर में अब तो कब्रिस्तान कैसा बचेगा। फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कब आया? कोर्ट का ऑर्डर जो है हम 19 में। काली खबर इलाके के साकिन 4 साला फरहान अनी वल्द मोहम्मद अब्बास अली का तवाज़ुन खो जाने की वजह से वो पानी के सब में गिरकर फौत हो गए। पुलिस मीर चौक ने मकाम वाक़े का मुआयना किया है और नाश को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफन्नी ने भी मकाम वाक़े पर पहुंचकर लवाकिन को पुरसा दिया है। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। ऐसा ही नहीं है, एक सिंगल आदमी मैं पूछने नहीं गया उनके घर को क्या है साहब, ये क्या क्या है, क्या हो रहा, क्या ये नहीं सब नीचे ड्राइवर है। आप जाकर पूछे, आप उसके बाबा से मिले, अपना दवाखाने में राब्ता हासिल करें, अपना दवाखाने में कुछ देखे, उसको बोले कि भाई उसको पूछे कटसी ग्राउंड में। आप बोलते हो ओनर क्या करेगा साहब इसके अंदर? आप जानो ओनर जानो, ह्यूमैनिटी तो होता कम से कम। नहीं साहब ये आप लोग बिल्कुल लापरवाह कर देगा। खेलते खेलते गिर गया। मोहम्मद फरहान अली है, 4 साल का बच्चा है मेरा। पानी में 3 जने खेल रहे थे भाइयों के साथ, गिर गए सम के अंदर। यहाँ 15-20 मिनट तक उसके अंदर ही थे गए थे। फिर हमारे घर वाले पूरे फ़ोन आ करे, भाइयाँ फ़ोन आ करे, बस्ती वाले फ़ोन आ करे, तो निकाले बस्ती वाले बस। और दवाखाने में देखते 12:30 को हुआ बोल के फ़ोन आया मेरे को। 1-1.5 बजे तक मैं भी हॉस्पिटल गया तो होगा बोल के बोल दिए। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TNGO SM हुसैनी मुजीब को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से एक अवार्ड दिया गया है जो लॉकडाउन के तहत गरीबों में राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। इन्होंने एक हमदर्दाना दिल रखते हुए इन्हें बेस्ट सोशल वर्क का खिताब से नवाजा गया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के जानिब से
जो मुंबई में ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट जनाब हाजी शेख साहब, जो कोविड-19 में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना इंजर्स यूनियन के सदर के हैसियत से हम लोग कारनामे अंजाम दिए। मैं और मेरी फैमिली और मेरे एम्प्लॉइज़ करीब 10,000 फैमिलीज़ को अनाज बांटा गया। उसके अलावा 328 लोगों से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद कर ये ब्लड डोनेशन भी दिया गया। बहरहाल ये तमाम सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग कोविड वॉरियर अवार्ड का अनाउंसमेंट कर आज मुंबई से उनके ऑफिस के 2 ऑफिसर्स आके हमारे तेलंगाना जैसे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में वो अवार्ड दिए। बहरहाल नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।